morning everyone, this is Dr. Usha Kumari, Assistant Professor, Department of English. Today we'll be doing the summary of the chapter 2 of the novel Kantapura. It so happened that one day Murthy dug out a half-sunk Shivalinga and suggested that it should be concentrated in a temple built in the honor. All in the Brahman quarter welcomed the suggestion. They built mud walls and put tiles over it. Thus, the temple came into being, and the concentration ceremony was duly performed by Bhatta. Rangama gave a feast to celebrate the occasion. Even the postmaster Suryanarayana suggested that they should have a Sankar Jayanti and read the Sankara Vijaya every day, and somebody should offer a dinner on each day of the month. They all agreed, and Rangam offered to give a dinner on all those days on which none else will be offering it. To give dinner on all those days, and Jayanti was started that every day, and it went on day after day. सेकेंड चैप्टर में क्या होता है कि मूर्ति अर्थ डिग करता है और वहाँ पे एक शिवलिंगा निकलता है, और लोग सजेशन देते हैं कि उसको मंदिर में टेंपल बनाकर वहाँ पर स्थापित कर दिया जाए, कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया जाए। सब ब्राह्मण क्वार्टर वाले लोग उसको वेलकम करते हैं, और इस तरह से एक मड वॉल बनाई जाती है, टाइल्स लगाई जाती हैं और एक मंदिर बना दिया जाता है। शिवलिंगा वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन दैट टेम्पल विद ड्यूली परफॉर्म्ड सेरेमनी। और ये जो सेरेमनी है स्थापना की, मूर्ति स्थापना की, वो भट्ट परफॉर्म करते हैं। रंगम्मा एक फिस्ट का आयोजन करती है, फिस्ट देती है, सभी को भोज का आयोजन किया जाता है उस खुशी में। पोस्टमास्टर सूर्यनारायण एक सजेशन देते हैं कि क्यों ना हम शंकर जयंती बनाएं इस उपलक्ष्य में, और पूरे 1 महीने के लिए शंकर विजय का पाठ किया जाता है। हर रोज़ डिनर्स फिस्ट दिए जाते हैं, जिसमें जिस दिन कोई व्यक्ति नहीं दे रहा होता उस दिन रंगम्मा उसको ऑर्गेनाइज़ करती है, और इस तरह से शंकर जयंती पूरे महीने के लिए मनाई जाती है। आफ्टर शंकर जयंती was over, Muti suggested that they should have Harikatha. He said that they should bring a Harikatha man from the city, and added that he would gladly come to the village if we pay him 10 rupees. The villagers also agreed, and Murthy collected money for the purpose for the Harikatha, and from house to house he even goes to the Peria quarter and collected money from there. And Murthy was also, we already know that he is the follower of Mahatma Gandhi, and he was against untouchables, so that's why he visited the Peria। और गांव के सब लोग हरिकथा के लिए एग्री हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि मूर्ति कहता है कि हरिकथा के लिए हमें 10 रुपये देने पड़ेंगे हरिकथा मैन को, और वो घर घर जाके पैसे इकट्ठे करता है। इवन पेरिया क्वार्टर में भी जाता है, बिकॉज ही इज़ अ गांधी मैन, और गांधी जी के फॉलोअर करने के कारण ही डोंट एक्सेप्ट टचेबिलिटी, अनटचेबल्स को भी वो ह्यूमन बींग्स मानता है। इस तरह से वो सारे गांव में जाके पैसे इकट्ठे करता है ताकि हरिकथा ऑर्गेनाइज हो सके। As we know that Murthy was a follower of Gandhi and was against untouchables or any kind of discrimination on the basis of caste, creed and religion. Thus he collected 147 rupees. You have to remember 147, 147 रुपये इकट्ठे होते हैं पूरे गांव से। He brought from the city the Harikatha man whose name was Jai Ramachar. He was very different kind of Harikatha man. He always would bring in Gandhi and the freedom struggle and the British, along with the stories of gods and goddesses, calling Gandhi is the incarnation of God and the British at the Rakshasas. हम देखते हैं कि वहाँ से मूर्ति एक हरिकथा मैन को लाते हैं जिसका नाम है जयरामाचार, और जयरामाचार बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ हरिकथा मैन है, जो अपनी हर हरिकथा में गॉड्स एंड गॉडेसेस की कथा के साथ साथ गांधी जी और ब्रिटिश गवर्नमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल को ले आता है, और डिपिक्ट करता है कि जैसे गांधी जी श्री राम भगवान का अवतार हैं, राम और कृष्ण का अवतार हैं, ब्रिटिश राक्षस हैं, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं गांधी जी, दैट इज़ द स्ट्रगल अगेंस्ट
evil. Through his Harikatha, he tried to motivate the person to fight for the freedom of India. His Harikatha was actually a political propaganda in disguise. So Jairamachar, the Harikatha man, was soon arrested by the government, who got the information about he was doing Harikatha in Kantapura. After that, Murthy and the young man of the village threw away their foreign clothes and became active followers of the Gandhiji. And Jairamachar, addressing the audience, would say, our Mohandas began to fight against the enemies of the country, that is Britishers. He says, fight but harm no soul. Love all Hindu, Mohammedans, Christians, or Pariah, for all and are equal before God, and it is the only God I know, spin and weave every day. And because our mother is in tattered weeds and needs clothes to cover her body, he is a saint in the Mahatma. और हम यहाँ पर देखते हैं कि जयरामचार को अरेस्ट कर लिया जाता है, और अरेस्ट के बाद जो मूर्ति गांधी जी के फॉलोअर हैं और गांव के दूसरे जो यंग बॉयज़ हैं वो फ़ॉरेन क्लॉथ्स का बहिष्कार कर देते हैं और विद्रोह करते हैं फ़ॉरेन चीज़ों का। हम देखते हैं कि हरिकथा मैन फिर कथाएँ करता है और वो बताता है कि किस तरह से गांधी जी जो हैं वो भगवान का अवतार हैं, और हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मनुष्य हैं, भगवान के सामने सब इक्वल हैं। हमें पैसे और जो रिच है, अमीर है, उनके साथ अटैच नहीं होना। हमें सिर्फ सच को बोलना है। वी हैव टू स्पीक द ट्रुथ, क्योंकि ट्रुथ इज़ गॉड एंड दैट इज़ द ओनली गॉड। सच ही भगवान है, सत्य ही ईश्वर है। और वो कहता है कि हर रोज़ हम गांधी जी के अनुसार, जयरामचार बताते हैं कि गांधी जी के अनुसार हमारी जो माता है, भारत माता, वो फटे हुए कपड़ों में है, तो इसलिए हमें हर रोज़ कपड़ा बुनना है, स्पिन करना है, चरखा चलाना है, ताकि हमारी जो माँ है उसके शरीर को हम कपड़ों से ढक सकें। हमारी जो मदर है वो टेटर्स वीड्स में है, फटे हुए कपड़ों में है, और उसके जो शरीर के घाव हैं वो दिखाई दे रहे हैं, हमें उनको कवर करना है। और ये सब बातें महात्मा गांधी जी ने हमें बताई हैं। ही इज़ द सेंट, वो महान आत्मा है, सेंट है, महात्मा है। In this way, the Harikatha men provide the fine example of Raja Raw's use of the mythical technique. The novelist goes to the past and finally parallel presents the present, and the past is used to glorify the present. Gandhiji is glorified as and raised to the level of Rama and Krishna, who fought against the demon as Gandhiji was fighting the red man. That's why the novel has been called as a गांधी एपिक। हम देखते हैं कि बड़ी टेक्निकली, बहुत ही अच्छे तरीके से राजा राव इस नॉवल को मिथिक से, पुराने हमारे मिथ से जोड़ देते हैं। और नॉवल तो इस एक्सटेंट तक चले जाते हैं नॉवलिस्ट कि वो हमारे पास्ट और प्रेजेंट को एक साथ जोड़कर चलाते हैं। हमारा पास्ट बहुत ही ग्लोरीफाइड रहा है, प्रेजेंट भी ग्लोरीफाइड है। वो गांधी जी को राम और कृष्ण के लेवल पर डिपिक्ट करते हैं, जो भारत के जो शैतान है, भारत की आज़ादी के जो शैतान है, ब्रिटिशर्स, उनके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। और इस तरह से नोवेल गांधी एपिक के रूप में प्रेजेंट किया गया है। सो दैट वाज द समरी ऑफ द चैप्टर 2। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।